the Aghwan Napoleon, Ahmad Shah Massoud. होता ये है कि एक कैमरा टीम आती है to interview Ahmad Shah Massoud. I think he was praying at that point of time, or he just got off the prayer and he comes and sits. The camera blasts. और वो अलकायदा ने उसको क्लेम किया, उसामा बिन लादेन ने उसको पर्सनली ऑर्डर किया इस अटैक को, उसने मॉनिटर किया कि ये अटैक सक्सेसफुल। और अगर मैं आपको 1975 में ले जाऊँ, आई थिंक इज 22 इस टाइम पे, तो ये इनकी पहली सॉर्ट ऑफ कॉम्बैट से लेन देन कुछ हुआ। ही वॉज एंटी कम्युनिज्म एंड ही सपोर्टेड द इस्लामिक सिस्टम। अहमद शाह मसूद की लड़ाई होती है एक सोवियत प्रोफेसर के साथ, काबुल यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, एंड he comes to Peshawar. अच्छा। And in Peshawar he is reached out by our very famous ISI because he realized that point, मुझे अपने लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो उन्होंने मुजाहिदीन को एक पेज पे कैसे लाए टू फाइट द सोवियट्स? जैसे ही सोवियट्स इन्वेडेड, पहले भी the मुजाहिदीन were united and they had communication between each other. कितना रोल था अहमद शाह मसूद का इन डिफीटिंग द सोवियट्स? He was the biggest resistance leader, अहमद शाह मसूद। उन्होंने 6 प्रॉपर असॉल्ट्स किए हैं पंजशीर पे। 6 Was he close to death ever? A number of times. British found Ahmad Shah Massoud. And they figured out that this is the guy that we need to support. उन्होंने यूरोप में ये भी बताया था कि एक मेजर टेररिस्ट अटैक भी प्लान्ड है, मतलब ऑलमोस्ट प्रेडिक्टिंग के 9/11 होगा। हाँ, he predicted that. क्या अहमद शाह मसूद उनके लिए एक हीरो है? अफगानी अवाम के लिए मैं बस बात कर रहा हूँ, पंजशीर में या इवन काबुल में, क्या वो एक हीरो हैं? क्या वो एक विलन है? Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have one of our favorite guests, our resident Afghanistan expert, Shahzeeb Wallah on the podcast. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। Thank you for having me. Fourth time, हाँ, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे, आपकी शायद एक अपनी प्लेलिस्ट बननी पड़ेगी लेकिन असल में आपने हमें बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाई हैं और अफगानिस्तान में भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। तो आज वी वांटेड टू टॉक अबाउट द अगवान नेपोलियन, जो हम ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे। अहमद शाह मसूद इज़ कंसिडर्ड अ विलन बाय सम, अ हीरो बाय सम। अफगानिस्तान में कहानी हमेशा कुछ ऐसी ही होती है। तो थोड़ा सा आप हमें इनकी अर्ली लाइफ से शुरू करते हैं। ही वाज द सन ऑफ अ कर्नल इन द अगवान आर्मी। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन वाज ही? क्या डिड ही बिलोंग टू मनी? किस तरह के आदमी थे वो? अच्छा, yeah, his father was a colonel in the Afghan, उस वक्त की जो रॉयल आर्मी थी उसमें he was serving, and he belonged to a good family, a well-to-do family. The family had a house in Panjshir where they're originally from, the Panjshir Valley. उसके अलावा initially he was raised in Herat, which is next to the Iran border, and it's one of the most, how do you say, the culturally rich cities in Afghanistan. And they also had a house in Kabul. Eventually afterwards, they moved to Kabul, the family. And the school that he went to, Ahmad Shah Massoud, was the Lycée. It's called the Lycée. It's a French school. Achha. So it was the best school in Afghanistan at that point. It was like a private school, fancy school. Fancy school. हमारा HSN college. College के level का इस तरह का. But it was a French school. So most of the teachers there were French. Some of them were Afghans as well, but Afghans who were taught and, who were actually trained in France. So that's where he actually got his initial education. And then, he was very fluent in French actually. Achha. He was fluent in French, in Persian, and in Pashto, and he was very fond of Persian literature. So, but he never actually spoke English. That's a very fascinating fact. हाँ, तो because एक colonial अंग्रेजी के साथ एक वो colonial history थी, तो he didn't like कि मैं उस ज़ुबान में बोलूँ। और again he became fluent at an early age going to a French school in French. तो उसकी वजह से उसी की वजह से अहमद शाह मसूद का बहुत ज़्यादा एक यूरोपियन और एक वेस्टर्न जो उसके साथ एक रोमांसिज्म है, वो उसी वजह से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि he was very fluent in one of the European languages. और on top of it के a lot of French journalists had access to him because he could speak French, so they didn't need an interpreter or किसी के साथ. और then there were a lot of documentaries and books written about him in France, so there is a kind of this romance of Ahmad Shah Massoud. बिल्कुल। तो he's मतलब in the West तो especially बड़ा celebrated से हैं, लेकिन क्या वो एक लिबरल सी फैमिली में बिलोंग करते थे? क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा हूँ ना, अर्ली लाइफ से उनकी पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज़, वो भी रिलीजियस व्यूज़
थी उनकी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हैं कंपैरेटिव अफगानिस्तान में लिबरल थे ज़्यादा वो. हाँ, the family itself was a bit liberal. His mother was liberal. That's what is said के who was quite progressive. और उन्होंने she actually learned to read and write in her middle age. और उसके बाद she believed in the fact कि मैंने अपने बेटे को भी पढ़ाना है और अपनी बेटियों को भी पढ़ाना है. So उसकी वो खुद भी स्कूल जाते थे, अहमद शाह मंसूरी स्कूल जाते थे, उनकी बहनें भी उसी स्कूल में जाती थी, वहाँ पढ़ती थी, विच वॉज नॉट वेरी कॉमन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और उसके अलावा ही हिमसेल्फ एज ही इज़ नोन, ही वॉज what people say, he was a strong Muslim. He was not an Islamist. You cannot say he was an Islamist. He was not extremist. Or he was not someone जो कि बहुत ज़्यादा इस्लाम के अंदर था, but he was a good Muslim. He would pray 5 times a day. He was always into Islamic teaching. One of his major, the reason he became a commander, or the thing that actually pulled him towards फौज की तरफ या सोल्जर बनने की तरफ, वो was the 6 days war थी, the Arab-Israel war. He was a teenager at that point of time when he actually got to know about that war, and he would actually listen to that war, the commentary on that war जो BBC Persian पे की जाती थी, तो he would listen to it, and that's what actually engaged him. The Muslim leaders, the Arab Muslim leaders, उनकी speeches को, he heard those speeches, and that's what actually pulled him towards fighting for his own country. And lekin at the same time he was not an extremist as well. So he later in his life, we'll get into education, social development, and he actually later in his life he opposed one of the biggest reason he opposed Gulbuddin Hikmatyar, who was Hizb Islami ke jo the, and afterwards the Taliban, is also the fact that he thought that they were Islamists. And his vision for Afghanistan was never a Islamist vision. His vision was that Afghanistan in itself is a country जहाँ पे there are different ethnicities, there are different religions. Shias भी exist करते हैं, Sunnis भी exist करते हैं, उसमें भी काफ़ी sects exist करते हैं. So it should always be a decentralized kind of a government in Afghanistan, जिसके अंदर सबको एक शेयर मिले, और एक central government ना हो किसी एक सख्त किसी एक तबके की, या फिर काइंड ऑफ पश्तून की या नॉन पश्तून्स की. तो इस तरह अगर हम उनको देखें तो वी कैन consider the fact that he was a bit democratic as well, liberal, forward looking, but at the same time being a very strong Muslim. और अगर मैं आपको 1975 में ले जाऊँ, आई थिंक इज 22 इस टाइम पे, तो ये इनकी पहली सॉर्ट ऑफ कॉम्बैट से लेन देन कुछ हुआ, एक अपराइजिंग में कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ना शुरू हुआ. ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. ये वॉज ये ट्रेंड मिलिट्री मैन, खैर 22 साल पे कितनी कोई ट्रेनिंग हुई होगी, तो ये कैसे, ये सिचुएशन कैसे डेवलप होती है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसमें we'll have to go a bit back, not in 75. We don't have to start at 75. 75 was the first Panjshir kind of revolution, or the stand which he orchestrated at that point of time. लेकिन what happened was कि 72 में, in early 70s he actually went into the Kabul University. ठीक है. At that point of time 71-72 के करीब दाऊद खान की गवर्नमेंट आ चुकी हुई थी, which was a communist government. और उन्होंने कू कर लिया हुआ था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन प्लेस थी. और जो काबुल यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स थे वो मोस्टली या सोवियट्स थे, डायरेक्टली सोवियट्स खुद पढ़ा रहे थे, या फिर वो अफगान टीचर्स थे जो कि काइंड ऑफ सोवियत यूनियन से पढ़ के आए हुए थे. तो फॉर हिम इट वाज अ बिग चेंज. ही वाज कमिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन जहाँ पे वो फ्रेंच में पढ़ के आया, लिबरल और ये, एंड ही गोज and it comes to he's in a university जहाँ पे वो सोवियट्स और कम्युनिज्म आ गई, और वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फासिस्ट, और उस तरह की रिजीम थी उस ज़माने में. तो he had a fallout at that point of time. He was anti-communism and he supported the Islamic system. वो ये चाहते थे कि अफगानिस्तान में एक इस्लामिक अफ़गान सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए. इस्लामिक मूवमेंट का वो हिस्सा बन गए उस वक्त. जो जमात इस्लामी थी, वो बुरहानुद्दीन रब्बानी की जमात इस्लामी जो थी, उसका वो उसी स्टूडेंट लाइफ में ही उसी का हिस्सा बन गए. 72-73 में ये होता है कि जी इन अ क्लास ही वॉज ऑलवेज वेरी एक्टिव इन डिबेट्स. और उनके अहमद शाह मसूद की लड़ाई होती है एक सोवियत प्रोफेसर के साथ, और वो लड़ाई जो है वो हाथापाई में बल जाती है. एंड ही पंचेस हिम, एंड ही द सोवियत प्रोफेसर ही फॉल्स, एंड देन ही वॉक्स आउट ऑफ द क्लास, एंड इवेंचुअली ही वॉक्स आउट ऑफ द काबुल यूनिवर्सिटी, छोड़ देते हैं. एंड ही कम्स टू पेशावर. अच्छा. एंड इन पेशावर ही इज रीच्ड आउट बाय आवर very famous ISI. और वो उनको आगे कहते हैं कि जी they were actually at that point of time जुल्फ़िकार अली भुट्टो who was in power in Pakistan, वो दाऊद खान की हुकूमत के खिलाफ था.
एक सेकंड, आप मुझे कह रहे हैं कि मुल्ला उमर को भी हमने और हमारे भाइयों ने, आप जहाँ पे अफगानिस्तान में जाएंगे ना किसी ना किसी पोर्शन में कहीं ना कहीं जाके वो अपारा ही जाते हैं। अपारा वाले भाई जो है ना वो स्टेप इन कर ही जाते हैं। चलिए कंटिन्यू करें, ठीक है ठीक है। अब होता ये है कि ही कम्स टू पेशावर, ही इज एक्चुअली रीच्ड आउट। इधर पॉलिसी पाकिस्तान में उस वक्त ऑल्टरनेटिवली पॉलिसी चली थी कि जो हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, ही वाज वो इतने प्रो नहीं थे उस वक्त दाऊद खान की गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो कि इन प्लेस थी अफगानिस्तान के अंदर, इनके अपने टसल्स चल रहे थे। तो दे वर ट्राइंग टू सपोर्ट इस्लामिक, और जो लोग अपोज कर रहे थे बेसिकली दाऊद खान गवर्नमेंट को, और बेसिकली वो इसी तरह के इस्लामिस्ट या फिर इस्लामिक मूवमेंट से बिलोंग करने वाले लोग थे। ही कम्स टू पेशावर थ्रू अ म्यूचुअल पर्सन, द ISI reaches out to him to actually, you know, kind of train him or to give him some kind of, you know, training और इस तरह की चीज़ों में, and he actually stays in Peshawar. होता ये है कि 1-2 साल ही इज़ इन टच विद ISI, he gets trained, और वो 75 में with some 30 odd friends and Panjshiris, he makes up a plan. He goes back to Panjshir, border से बाजोड़ से, I think he crosses from बाजोड़, and he goes by foot spring में जबकि snowfall melt करना शुरू करती है, तो he goes by foot to Panjshir. अब the initial plan was कि एक तरफ से पंजशीर से ये अपराइजिंग करेंगे, सही, दूसरी तरफ से वो हिकमत यार गुलबुद्दीन, अब ये कैरेक्टर, दैट कैरेक्टर कम्स इन एज वेल, ही इज आल्सो इस्लामिक, यू नो, ही इज आल्सो यंग एज वेल। इसका कोई लेन देन हमारी फौज से? ये बेसिक हमारी फौज का जो बेसिकली हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो उस वक्त का मेन मैन था वो हिकमत यार था। इसने हिज़्ब इस्लामी बना ली। बेसिकली जमात इस्लामी में ही पहले आया, लेकिन बाद में इसने हिज़्ब इस्लामी फॉर्म कर ली, अपनी जमात फॉर्म कर ली। तो देयर वाज दिस काइंड ऑफ अ प्लान कि हिज़्ब इस्लामी अपनी तरफ से जलालाबाद साइड से एक अपराइजिंग करेगी, और ये फ्रॉम द नॉर्थ अपराइजिंग करेंगे, और ये काबुल को बेसिकली ना कॉर्डन ऑफ कर देंगे। और दोनों जो हैं वो दे विल मार्च इन, और दे वुड ट्राई टू कॉर्डन, और इस तरह की एक प्लान बनाया गया। उस प्लान में होता ही है कि ही गोज बैक टू, अहमद शाह मसूद गोज बैक टू पंजशीर, ही स्टार्ट्स दिस इंसर्जेंसी, दिस रिबेलियस मूवमेंट। और होता ये है कि इनिशियली इट बिकम सक्सेसफुल। वो अपर वैली में कुछ गैरिजन्स हैं, अपर पंजशीर वैली में कुछ गैरिजन्स हैं, दे आर एबल टू टेक ओवर, बट द गवर्नमेंट फोर्सेस दे एक्चुअली रीइंफोर्स एंड दे एक्चुअली स्टार्ट टू अटैक। एंड द अदर प्रॉमिस्ड साइड जो कि हिकमत यार ने करनी थी, वो दैट फेल्स बैडली. So they didn't get the reinforcement that they were promised, and very initially this uprising starts and it actually falls. लेकिन is he able to, मतलब आवाम को क्या लगा ये अब जब फेल हुआ, तो क्या उसमें एक फॉर एग्जांपल गुडविल बनना शुरू हो गया था इन द पीपल? क्या वो उसको बिलीव करना शुरू हुए थे? क्योंकि उसके चंद साल बाद, आई थिंक 1979 में जब सोवियत से अटैक अफगानिस्तान, तो उस वक्त या इस टाइम फ्रेम के बीच में व्हाट वाज ही रिगार्डेड एज इन पंजशीर? अच्छा, अब ये होता है कि ही लर्न्स अ बिग लेसन देयर, कि अब वो भी उसी वक्त लर्न नहीं करता। दिस एक्चुअली फेल्स, दिस प्लॉट फेल्स, एंड ही कम्स बैक टू पेशावर. From Peshawar, he's taken into by our establishment to actually, train him in guerrilla warfare or something. And he actually gets, at that point of time, wo samajhta hai ki this is not enough. And the training that I'm getting is not good enough. So he goes back and he isolates himself in Peshawar. Achha. And when he isolates himself in Peshawar, he actually introduces himself to Mao, Chairman Mao. Uski movement को देखता है, फिर वो ची गुवेरा की जो मूवमेंट थी वो क्यूबा वाली, उसको देखता है, उनका लिटरेचर पढ़ता है, और वो बेसिकली अपने आप को मास्टर करता है इन गुरिल्ला वॉरफेयर. और वो समझता है कि बेसिकली गुरिल्ला वॉरफेयर जो है, दैट्स गोइंग टू बी हाउ वी कैन एक्चुअली, हम दाऊद खान, उस वक्त तो दाऊद खान की ही अभी हुकूमत होती है, फिर थोड़ी देर बाद फॉल कर जाती है, एक प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही कू करती है उस अफगानिस्तान में, तो हम इनके खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं. बट एट द सेम टाइम ही वाज सपोर्टिंग द मुजाहिदीन, द इस्लामिक मुजाहिदीन, जो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे, और वो सारे ही बेसिकली पेशावर में थे या फिर हमारी बेल्ट के अंदर थे. ये तालिबान नहीं है, ये मुजाहिदीन है, ठीक है, जिसमें पश्तून भी थे, जिसमें ताजिक भी थे, और ये सारे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे. और वो उनको सपोर्ट करता है, उनसे मिलता है, वहाँ पे अपनी एक रीइंफोर्समेंट क्रिएट करता है. और ही रियलाइजेस कि द ओनली वे कि एक ऐसी मूवमेंट है, गुरिल्ला वॉरफेयर है, या फिर कोई ऐसी रिबेलियन है, वो कामयाब हो सकती है, दैट इज़ विद पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द पीपल. मुझे सबसे पहले अपने लोगों को इकट्ठा करना है.
and he starts to, you know, with his Jamaat Islami की जो उसकी अपनी organization है, उसके साथ he starts to, you know, build relationship inside Panjshir. The family itself was influential. People knew of the family even before, so he uses that, and ahista he starts to build up, and you know, in 79 he returns to Panjshir. 78, 79 he returns to Panjshir to actually start the fight against the communist government in Kabul. अब होता ये है कि जी पंजशीर में ये जाता है, he starts a rebellious movement, something around जी कोई 30 to 40 लोग फिर लेके जाता है, but this time with 30 to 40 लोग he is able to actually gain control in the upper Panjshir Valley. और अगर आप पंजशीर का भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, पंजशीर is actually north of Kabul, 70-80 miles north of Kabul, but at the same time it's a valley. It's a very steep valley which actually is around the Panjshir river, और बहुत ऊंचे पहाड़ हैं. तो basically if you get hold of the top of the valley, it's really hard to actually for the government to come in or the forces to come in, क्योंकि वो अंदर से आएंगे, and then you have the control, and then you can, you know, fire on them. Guerrilla warfare के लिए perfect. He gets hold of that valley. अभी इसके पास कुछ 100 के करीब, सैकड़ों में लोग होते हैं, हजारों में अभी तक लोग नहीं हैं इसके पास अभी करंटली. और मज़ेदार चीज़ ये होती है कि बिकॉज ही रियलाइज दैट पॉइंट कि मुझे अपने लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो ही एक्चुअली गिव्स दिस, ही क्रिएट्स हिज ओन कंपनी देयर, और वो अपने भाई को अहमद वली, आई थिंक हिज नेम वाज अहमद वली, वो उसको ये मिशन देता है कि यू हैव टू गो एंड एक्चुअली talk to the villagers and actually persuade them to join me, कि हमें ज्वाइन करें against this communist government. और इसके बीच में जब ये सब कुछ कर रहा होता है, तो ऊपर से इसको तोहफा ये मिलता है कि सोवियट्स डायरेक्टली इन्वेड अफगानिस्तान, कि उनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो इन प्लेस थी, जो उनकी सपोर्ट में थी, इट बिकम्स रियली अनपॉपुलर, और वो इतनी अनपॉपुलर हो जाती है कि वो रिस्क नहीं ले सकते. उनको ये होता है कि अब ये दिस विल फॉल, और वो भी डिवाइड इनटू टू, उनके अंदर भी, कम्युनिस्ट के अंदर भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी डिवाइड इनटू टू मेजर फ्रैक्शंस. अब कम्युनिस्ट अटैक कर देते हैं. एज सून एज द कम्युनिस्ट अटैक, ही बिकम्स अ पॉपुलर रेजिस्टेंस लीडर, because he was already against the resistance. He was from the north and he was actually on the ground fighting. तो he becomes, तो जहाँ पे इसके पास सैकड़ों लोग थे इसको सपोर्ट करने के लिए, अहमद शाह मसूद को, वो हज़ारों में तब्दील हो जाते हैं. So he has something around 1600 से 2000 के करीब कि इसकी एक लश्कर साइज का फॉर्म ये कर लेता है. But the thing was that he was very, very intelligent in guerrilla warfare. That's the main point. उसकी greatness उस टाइम पे ये थी. He was able to 20 लोगों के साथ, 25-30 लोगों के साथ, he was able to take the valley firstly, and then he understood कि जी मैंने लोगों को persuade करना, and he was able to, you know, take in volunteers. How did he, मतलब मुजाहिदीन को एक पेज पे लाना, क्योंकि आपने ये शुरू में बात की कि वो इस्लामिस्ट लीडर्स के या फंडामेंटल लीडर्स के ख़िलाफ़ थे, तो इस मोमेंट में एक तो उन्होंने मुजाहिदीन को एक पेज पे कैसे लाए टू फाइट द सोवियट्स, दूसरा इस वक्त पाकिस्तान आर्मी वाज आल्सो बैकिंग मसूद. अच्छा, अब ये है कि मुजाहिदीन को एक पेज पे, तो बेसिकली जैसे ही सोवियट्स इन्वेडेड, पहले भी द मुजाहिदीन वर यूनाइटेड एंड दे हैड कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर बिकॉज दे वर फाइटिंग अगेंस्ट एंड दे वर रेजिस्टिंग अगेंस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. तो उनमें कम्युनिकेशन तो एग्जिस्ट करती थी. पाकिस्तान बिकेम द प्लेस जहाँ पे उनको एक सेफ हेवन भी मिल गई, कम्युनिकेट करने की जगह भी मिल गई. पेशावर में दे वर एबल टू कम इन टू पेशावर एंड, यू नो, रीइंफोर्स एंड सब कुछ करने के लिए उनके पास यहाँ पे ये थी. एंड अहमद शाह मसूद ऑलवेज बिलीव्ड, अगेन व्हेन ही वाज इन पेशावर फ्रॉम 75 ऑनवर्ड्स, फर्स्ट रिबेलियन फॉल होने के बाद, वो फेल होने के बाद, सो ही वॉज ऑलवेज इन टच विद द मुजाहिदीन लीडर्स. इनका और हिकमत यार का फॉलो आउट हो चुका हुआ था. अहमद शाह मसूद का फॉलो आउट किस चीज़ पे हुआ था? बेसिकली वो फंडामेंटलिस्ट था और ये थोड़ा लिबरल था. ठीक है, फर्स्टली. सेकेंडली दे वर ऑफ द सेम एज, तो उस तरह की भी ईगोस के कुछ इश्यूज भी थे बीच में एग्जिस्ट करते. हिकमत यार पश्तून था, तो ही वाज ऑलवेज पुशिंग फॉर पश्तून, यू नो, हेजमनी और इस तरह की चीज़ें. ऑल्सो हिकमत यार वाज वेरी वेरी प्रो पाकिस्तान एंड वाज
काइंड ऑफ अ पपेट, ये तस्लीम करता था कि वो पपेट है पाकिस्तान का। और दूसरी तरफ हिकमत यार जो कहता था कि ये लिबरल है और ये फ्रेंच, उसको उसने निकनेम दिया हुआ था कि अहमद शाह मसूद फ्रेंच मैन है, इसको फ्रेंच मैन कहता था वो छेड़ने के लिए कि फ्रेंच बोलता है, फ्लुएंट है फ्रेंच में, तो यूरोपियन गोरों का पपेट है। तो बेसिकली इस बात पे इन दोनों की इसमें कुछ हकीकत है कि क्या वो गोरों का पपेट था? I don't think so. And my understanding was he was always an Afghan. He fought in Afghanistan. He actually stayed in Afghanistan until the time he died. He warned the international community as well कि ये होने वाला है. But he stayed. He was the only one who stayed and who fought. He retreated. नहीं, ये नहीं कह सकते कि भाई वो हमेशा ही रहा. He retreated when it was needed, as great generals do. He had a war strategy, but he stayed in Afghanistan. And he's the only Afghan kind of national hero to be proclaimed as Afghan national hero, जो कि बाद में अमेरिकियों की जब अमेरिकी बैक गवर्नमेंट आई उन्होंने किया, लेकिन उसकी लेगेसी तो यही है कि he was an Afghan, he was an hero. और 1989 में जब सोवियट्स विदड्रॉ करना शुरू करते हैं, 85 से 89 तक जो ये जंग चली, कितना रोल था अहमद शाह मसूद का इन डिफीटिंग द सोवियट्स? A huge role. One of the biggest he was the biggest resistance leader, अहमद शाह मसूद. मसला ये कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में जब हम देखते हैं तो we always look towards the पश्तून leaders. हमें वही नज़र आते हैं क्योंकि हमारे करीब वो हैं, हम उनको समझते हैं. हमारे जो पश्तून बेल्ट भी है, हम we have a big पश्तून population, वो भी उन्हीं के बारे में बात करते हैं. हम उस इंसर्जेंसी को देखते हैं, जो इंसर्जेंसी या जो रेजिस्टेंस हमारे साइड से की गई, हमारे बॉर्डर से की गई. लेकिन ये वो अहमद शाह मसूद की ये वो रेजिस्टेंस है जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर से की गई और एक लैंड लॉक्ड रीजन के अंदर से. पंशीर चारों तरफ से पहाड़ी हैं और जब सोवियट्स वहाँ पे थे, दे हैड कंट्रोल अक्रॉस. लेकिन ही वाज द ओनली वन हु स्टेड एंड हु सर्वाइव्ड एंड हु फॉट फ्रॉम 79 टिल 84. नहीं, 83 में पहला सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द सोवियट्स और अहमद शाह मसूद. उन्होंने समथिंग अराउंड 6 प्रॉपर असॉल्ट्स किए हैं पंशीर पे. 6. Was he close to death ever? A number of times. तो 6 जो उन्होंने assaults किए हैं, and they failed miserably in these 6 assaults. And in 83, I remember, 82, 83 if I remember correctly, they had to sign a ceasefire agreement with Ahmad Shah Massoud to actually reinforce. And that actually, luckily, Ahmad Shah Massoud को वो जो ceasefire agreement मिला, he was also on his ammunition. और उसको ceasefire agreement मिला. That's where the MI6 stepped in. Achha. British found Ahmad Shah Massoud. And they figured out that this is the guy that we need to support. Because CIA at that point of time was actually supporting the Mujahideen as well. लेकिन CIA की सारी disbursement जो हो रही थी on local ground और जितने weapons जो disbursement हो रही थी वो सारी हम कर रहे थे. पाकिस्तानीज कर रहे थे, ISI कर रही थी, हमारी establishment कर रही थी. And they were close to Hikmat Yar and these Pashtun Mujahideens. So he didn't get a lot of support from CIA. So he actually fought. जो उसने resistance की हुई है, अकेले की है, वो उसने अकेले की है. फर्स्टली अकेले की है, वॉलंटरीली पैसा कलेक्ट करके की है. और जो उसके पास सबसे बड़ी सोर्स ऑफ फंडिंग था, वो 2 जो पत्थर निकलते हैं अफगानिस्तान से जो कि बड़े प्रेशियस पत्थर हैं, एक एमरल्ड और एक लिपीज़, जो ब्लू अफगान लिपीज़ उनका नेशनल स्टोन है. वो उसकी बेसिकली उसकी ट्रेड से की है कि उसको उसकी कानों पे कब्जा करके उधर से वो निकाल के और फिर उसने स्मगलिंग के थ्रू बेच के उससे जो पैसा आया उसके थ्रू की है. अंटिल 83 उसको कोई इतनी बड़ी कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली. वो MI6 ने जब 83 में उसको बेसिकली फिगर आउट किया है कि यार ये बंदा सही है या फिर हमें वी शुड सपोर्ट हिम अगेंस्ट द कम्युनिस्ट, तो फिर उन्होंने उसको सपोर्ट करना शुरू किया. और फिर वो आफ्टर अ फ्यू आई थिंक कुछ साल चला था और 85 में और 84 एंड पे 85 में बेसिकली वो सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म कर देते हैं. रशियंस अगेन बीइंग एंग्री ऑन द फैक्ट कि इसने बहुत ज़्यादा रीइंफोर्समेंट कर ली. उनकी इंटेलिजेंस ये कहती है कि ही इज़ एबल टू मेक अ प्रॉपर आर्मी फॉर हिमसेल्फ. सो अब ये 3500-4000 का लश्कर इसके पास आ चुका हुआ है अहमद शाह मसूद के पास. एंड व्हाट ही डज इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ दैट ही एक्चुअली हैज़ अ 3-point काइंड ऑफ प्लान. वो ये है, फर्स्टली जो मैंने आपको बताया कि फर्स्टली विन द लोकल लीडरशिप. ठीक है, लोकल पॉपुलेशन के दिलों को विन करो, उनकी सपोर्ट हासिल करो फर्स्टली. सेकेंडली
द गुरिल्ला वॉरफेयर का दूसरा असूल ये है कि जब आपने एक जगह पे कब्जा कर लिया है तो आपके पास एक एक्टिव डिफेंस सिस्टम होना चाहिए कि जब अगले अटैक करें तो आप उसको डिफेंड कर सकें. सही. ठीक है. इन अ गुरिल्ला वॉरफेयर के आप अटैक करें तो आप स्पेस दें, आप पीछे चले जाएं, एंड देन वंस दे गेट इन यू एम्बुश देम एंड यू अटैक देम. एंड ही एक्चुअली मास्टर्ड दैट स्किल इन दिस 3-4 years. जब वो रशियंस के खिलाफ 6 ऑफेंसेस उसने डिफेंड किए तो ही मास्टर्ड दैट स्किल. एंड थर्ड वाज एन एक्टिव ऑफेंस कि अब जब आप ये कर लो तो फिर आपने ऑफेंस पे जाना है एंड हाउ यू नो एक्सपैंड योर इन्फ्लुएंस. तो अब होता ये है कि जब वो सीज फायर एग्रीमेंट ख़त्म होता है तो रशियंस जो हैं वो अगले 2 साल के अंदर कंसेक्टिव ऑफेंसेस करते हैं इन पंशीर वैली, जिसमें वो विंटर ऑफेंस भी करते हैं. और जब वो एक्टिव ऑफेंस करते हैं तो हिज इंटेलिजेंस वाज कि माय पॉपुलेशन इज रियली हर्ट by this war. So in 85, when the first big offense, Russian offense after ceasefire happens, he actually calls the Panjshiri population to evacuate. And इससे उसकी popularity का आप हिसाब लगाएं कि the whole Panjshir Valley evacuates on his call. And he was wise enough and his intelligence was so good that he actually figured out कि अब ये आएंगे तो ये air से attack करेंगे and they will bombard the whole valley. And that's what they do. बच जाते हैं सारे, और सारे पॉपुलेशन बच जाती है बिकॉज ही एक्चुअली फोरसाइट थी ना, समझ आ गई, फोरसाइट थी, उसको अकल थी, उसने निकाल दिया लोगों को. एंड देन व्हाट ही डज इज दैट पंशीर में ही टेक्स अ स्टेप बैक, बट द नॉर्दर्न अफगानिस्तान जो ऊपर सारा का सारा सोवियत से कनेक्शन था, दैट ही ब्लॉक्स ऑफ. वो सारंग टनल एक बड़ी मशहूर टनल है जो कि बेसिकली काबुल को कनेक्ट करती है टू द नॉर्थ, विच इज़ द बॉर्डर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द बॉर्डर ऑफ सोवियत यूनियन. वहाँ से कनेक्ट करती है. ही ब्लोज अप द सारंग ब्रिजेस. वहाँ से उनकी वो रिइंफोर्समेंट ना आए ना जाए वो बंद कर देता है. ही ग्रोज इन्फ्लुएंस और वो नॉर्दर्न प्रोविंसेस में जाता है और ही स्टार्ट्स टेकिंग ओवर द नॉर्दर्न प्रोविंसेस. एंड जब उनका ऑफेंस, रशियन ऑफेंस फेल करता है, ही कम्स बैक टू पंशीर एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ द पंशीर वैली एज वेल. और जब वो वहाँ पे भी होते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही perfectly plays the guerrilla warfare के जब उनके टैंक्स अंदर आते हैं, they let them come in, then ambush. They fall back, they let them come in, they ambush, they fall back. So he actually mastered this skill. 87 में आके then the Russians realize कि there is no way that we will be able to defeat them, and then they figure out then we are gonna evacuate or go back. And then in 89 actually they signed, and so the thing is that their biggest foe, their biggest enemy, Ahmad Shah Massoud, firstly they ask him to come and form to be a part of Najibullah's government. अच्छा. जो कि basically Soviet backed government है. And they ask him for dialogue. And he goes, but he doesn't become part of Najibullah's government because he's again anti-communist government. And then they ask him, the Soviets ask him to give them a way for the safe exit. तो safe exit भी अहमद शाह मसूद से लेके जाते हैं. ये गारंटी करता है कि you will be given a way. हम तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, तुम्हारे ट्रूप्स को हम harass नहीं करेंगे. So imagine this person who survived this war. Russians को safe haven दे रहा है. और वो ही actually after time becomes a guarantor कि जी आपको रास्ता मैं दूंगा. That's crazy. अच्छा, अब आप मेरे साथ चलें कि जी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आती है 1992 है आई थिंक, जब वो वाली गवर्नमेंट भी गिर जाती है जो पोस्ट सोवियत यूनियन आती है. इस टाइम पे क्या होता है, अब तो आपकी एक इंटरनल सिविल वॉर शुरू हो जाती है ना, जिसमें ऑब्वियसली अहमद शाह मसूद एक कैरेक्टर है, छोटे यार है, दुस्तम है, मुल्ला उमर अभी राइज कर रहा है 92 में भी, अभी मुल्ला उमर शुरू हुआ है यहाँ, 92 यहाँ पे शुरू हुआ है. सो ये इस पॉइंट पे जो नई गवर्नमेंट में मसूद इज अपॉइंटेड द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस. ठीक है, व्हाई वाजंट ही, अगर वो इतने बड़े लीडर थे तो वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होता है ना अफगानिस्तान में, प्रेसिडेंट क्यों नहीं बने? अच्छा, बेसिकली पहले तो ये है कि जैसे ही सोवियत जाते हैं गवर्नमेंट नहीं गिरती. सोवियत बैक नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट बिल्कुल रहती है 3 साल रहती है until 1992. एंड अहमद शाह मसूद प्रेडिक्टेड दैट एज वेल क्योंकि उसने ये कहा था कि हम गुरिल्ला वॉरफेयर जीत गए क्योंकि हम पहाड़ों पे जाते थे और वो हमें इन्वेड करने आते थे और हम उनको मार देते थे. अब कन्वेंशनल वॉरफेयर है, कन्वेंशनल वॉरफेयर में हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं. एंड देन दे एक्चुअली स्टार्ट डूइंग द कन्वेंशनल वॉरफेयर. जब तक वहाँ पे सोवियत यूनियन खुद इंटैक्ट रहता है तब तक अफगानिस्तान में सोवियत बैक
कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रहती है नजीबुल्लाह की, जैसे ही सोवियत यूनियन ब्रेक करता है 92 में, विद इन वीक्स ये गवर्नमेंट भी गिर जाती है। होता ये है कि ही मार्चेस फ्रॉम द नॉर्थ, फ्रॉम पंशीर ही मार्चेस फ्रॉम द नॉर्थ, he takes the Bagram air base, which is the actually, अगर आप if you want to understand the warfare in Afghanistan, the air warfare in Afghanistan, the most important thing is the Bagram air base. ठीक है। अमरीकियों ने भी वही ली थी, अमरीकियों ने जैसे ही वो बगराम एयर बेस छोड़ी, अफगान गवर्नमेंट फॉल कर गई। इसी तरह नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट जैसे बगराम एयर बेस, क्या है इस एयर बेस में? इट्स अ ह्यूज एयर बेस नेक्स्ट टू 30-40 आई थिंक 40-50 माइल्स है, 100 किलोमीटर्स है फ्रॉम काबुल। सही है। जो बेसिकली कंट्रोल करती है काबुल को, बिकॉज यहाँ से आप एयर डिफेंस के जरिए पूरा काबुल को कंट्रोल कर सकते हैं। इर्द गिर्द क्या फौजें अंदर एंटर नहीं होने देंगे, सब कुछ नहीं होने देंगे इस एयरफील्ड की वजह से। और अमरीकियों ने भी तभी इस पे किया जब उन्होंने बगराम एयर बेस पे कब्जा किया है। तो ही टेक्स अप बगराम एयर बेस, 92 में आता है, बगराम एयर बेस पे कब्जा कर लेता है। देन ही मार्चेस इनटू काबुल। बिफोर he steps into Kabul, he stops and he actually sends out a message. Okay, at that point of time in 92, there is a negotiation happening in Peshawar, which is called the Peshawar Accord. Peshawar Pact कहते हैं, Accord कहते हैं। ज़ियाउल हक साहब के बेटे हैं, he played a vital role in that. Saudis के ने भी बड़ा एक vital role play किया था उसके अंदर। तो he stops before stepping in, he actually sends out a message कि जो पेशावर में negotiations हो रही हैं, which again इसका जो रबानी जो इसकी पार्टी का लीडर है जमात इस्लामी का, he is in Peshawar at that point of time, and he's participating in these negotiations as well. और ये कहता है कि भाई rather than one person stepping into Kabul and taking over Kabul and taking over whole Afghanistan, it's better कि एक negotiation के ज़रिए एक political solution निकाला जाए और सबको एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट के जरिए सबको एक काइंड ऑफ चंक ऑफ द पावर दिया जाए। चाहिए। और सारे जो हैं वो उसमें क्या कहते हैं उससे एग्री करें और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म की जाए, ऑब्वियसली, और विच वाज अ वाइज प्लान, वाइज मूव, एंड आल्सो पाकिस्तानीज वर आल्सो बैकिंग दिस मूव, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी, अफगान सऊदीज भी इसको बैक कर रहे थे कि ऐसे ही एक बेहतर सिस्टम बनेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अब वो हिकमत यार साहब खड़े हो जाते हैं, गुलबुद्दीन हिकमत यार साहब, वो कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान विल बी रूल्ड बाय वन पर्सन, बाय वन सेंट्रलाइज गवर्नमेंट। अगर आप ऐसी एक वीक गवर्नमेंट बनाएंगे तो वो फिर टूटती रहेगी, फिर सिविल वॉर चलती रहेगी, एंड ही बिकम्स सेल्फिश एंड ही एक्चुअली मार्चेस ऑन टू फ्रॉम सरोबी टू काबुल, कि मैं जाके आई विल टेक काबुल। इवन दो कि पेशावर पैक्ट में हिकमत यार को ये कहा गया था कि तुम प्राइम मिनिस्टर बनो और मसूद डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, बट ही डजंट टेक द फॉर्मूला कि मसले होंगे आगे, कि मसले होंगे, ये होंगे, वो होंगे। देन मसूद टेक्स ओवर काबुल। मसूद टेक्स ओवर काबुल। हिकमत यार स्टार्ट्स टू बॉम्ब फ्रॉम द ईस्ट। वो कैवलरी लेके आके वो पहाड़ियों से सिटी को बॉम्ब करना शुरू कर देता है। ऑन दी अदर हैंड अब वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एक इंटरनल वो है कि जो मसूद भी इस अहमद शाह मसूद पे भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म है कि द वे ही किल्ड सिविलियंस इन काबुल, क्योंकि फिर एक अंदर सिविल वॉर भी काबुल के अंदर शुरू हो गई थी बिटवीन डिफरेंट मुजाहिदीन ग्रुप्स, जो कि आपस में लड़ना शुरू हो गए थे टू टेक कंट्रोल, और जिसमें बेसिकली हज़ारा ग्रुप्स जो थे वो दे स्टार्टेड फाइटिंग विद प्रो मसूद ग्रुप्स, एंड एक्चुअली मसूद ऑर्डर्ड military operation in Hazara areas, and then a huge number of Hazaras were killed. His forces carried out quite abusive, उन्होंने चीज़ें भी की। Again afterwards Masood actually condemned that as well, कि अहमद शाह मसूद ने उसको कंडेम किया कि और अपनी फोर्सेस को कंडेम किया कि ये हुआ, एंड ही एडमिटेड द फैक्ट कि ये चीज़ें हुई हैं और ये नहीं होनी चाहिए थी। तो दिस इज़ द टाइम कि जब बड़ा ब्लडी एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशन चल रही है, एक सिविल वॉर चल रही है। सेंटर में एक कोलिजन सी गवर्नमेंट है जो कि बेसिकली एक मुजाहिदीन की कमेटी चला रही है, और बीच में अहमद शाह मसूद जो है बेसिक ही इज़ द की मैन, he is the defense minister and he is the one who has the authority and who's running the show, because it's a civil war. The person who is commanding the biggest army is the key man actually. तो वो अब इस वक्त ये चल रहा है अफगानिस्तान। और was this the rise of the Taliban? Was this where अगर ये सिविल वॉर इस तरह ब्लडी ना होती और उधर शायद मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बन जाते और प्रेसिडेंट बन जाते और कुछ हद तक कोई कोalition टाइप गवर्नमेंट चला लेते, बिल्कुल यही है। तो क्या आज तालिबान एग्जिस्ट करते?
ये सवाल ज़रा मुश्किल है जवाब देना इस सवाल का, लेकिन तालिबान की राइज का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा वजह बनी, ये बात बिल्कुल सच है कि तालिबान बेसिकली 92 में ही मुल्ला उमर खड़ा हुआ, मुल्ला उमर फॉर्म द तालिबान, जिस हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी मुल्ला उमर वाले पे बात की थी बड़ी लंबी उस पर, और यही सारी जो ब्लडी बेसिकली एक सिविल वॉर चल रही थी, और सिविल वॉर सिर्फ और सिर्फ इस बात पे नहीं चल रही थी, सारी एथनिक ग्रुप्स जो थे वो खड़े हो गए थे, वॉरलॉर्ड्स खड़े हो गए थे कि हमें हमारा शेयर दिया जाए, और एक अकलौती ऐसी फोर्स निकली इसमें से जो बेसिकली एक अफगान फोर्स थी, लेकिन लड़ वो इस्लाम के नाम पे रही थी, जो थी तालिबान। वो और उनकी जो चीज़ थी वो रेजोनेट की, बिल्कुल वो डिफरेंट थी ना, वो डिफरेंट थी, वो रेजोनेट की। वो मुजाहिदीन भी नहीं थे, वो पुराने वॉरलॉर्ड्स भी नहीं थे, जो लोकल पॉपुलेशन थी वो उनके साथ थोड़ा सपोर्ट करना शुरू की कि ये नए हैं, हम इनको देखते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो कि सेंटर में गवर्नमेंट बैठी हुई है वो फाइट करी जा रही है अपने आप को। अब वहाँ पे अहमद शाह मसूद हिकमत यार से लड़ रहा है। हिकमत यार जो है वो कभी दुस्तम से अलायंस बना लेता है, दुस्तम कभी अहमद शाह मसूद से अलायंस बना लेता है। वो गेम ऑफ थ्रोन चल रही है वहाँ पे, और वो लोकल पॉपुलेशन उसमें मर रही है बेसिकली। वो फिर बिस्मिल्लाह खान हेरात में अपनी कोई फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, और वो इस तरह ये एक चल रही है। और बीच में तालिबान दे एक्चुअली गेट द वैक्यूम एंड दे हैव द स्पेस एंड दे एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग ओवर द कंट्री। अच्छा, 1996 से 2001 तक एक तालिबान वी अहमद शाह मसूद एक जंग शुरू होती है। इसमें मैं समझने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी देर पहले आपने बताया हिकमत यार, अहमद शाह मसूद, मुल्ला उमर, इन तीनों का एक अपारा कनेक्शन है। और अगर अपारा नहीं, वो इतना नहीं है, वो बाद में वो बेसिक कनेक्शन तो अपारा ने बनाया। वो जो कम्युनिकेशन था वो फॉर्म तो इन्होंने किया क्योंकि इनकी अपनी पॉलिसी के साथ अलाइन करता था। लेकिन अहमद शाह मसूद, यू कैन नॉट से कि वो ही वाज रन बाय आईएसआई, वो बड़ा खिलाफ था। लेकिन उनकी एक रिलेशनशिप तो थी ना। अब जब मुल्ला उमर की भी उनसे एक करंट रिलेशनशिप है, इनने कभी इनको टेबल पे बिठाने की कोशिश नहीं की कि यार बहुत दफ़ा आफ्टर बिफोर द फॉल, बिफोर द तालिबान टुक ओवर काबुल, बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने कोशिश की कि एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकले। लेकिन पाकिस्तान अगेन, जब पाकिस्तान हिकमत यार को भी बैक कर रहा था अगेंस्ट अहमद शाह मसूद, उसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान चाहता था हिकमत यार जैसा एक इस्लामिस्ट पपेट हमारे आए ताकि हमें रास्ता मिले टूवर्ड्स सेंट्रल एशिया। दूसरी साइड पे जब तालिबान आए, पाकिस्तान ने बड़ी पेट तालिबान पे प्लेस की, लेकिन वो भी पपेट नहीं निकले। लेकिन वो दे टुक ओवर काबुल। पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया फॉर द फर्स्ट तालिबान रजीम टू टेक ओवर काबुल। उन्होंने बाजार शरीफ में जब एंटर हुए तो हमारे यहाँ के बहुत बड़े ऑफिशियल थे जो कि बाजार शरीफ में जब वो एंटर हुए तो उसमें साथ थे। जो पूरा का पूरा जलालाबाद प्लान था वो हमने बना के दिया तालिबान को, ठीक है। तो हमने फिर बड़ी बेट प्लेस की क्योंकि हम हमेशा से एक हमारी सोच ये रही है कि हम प्रो पश्तून रहे हैं अफगानिस्तान में, कि पश्तून हमारे करीब हैं, हमारे लिए कंट्रोलेबल हैं। उस टाइम तक तो एटलीस्ट इनकी सोच थी। और दूसरी, हम एंटाई पर्शियन और फ़ारसी और ये फ़ारसी बान और ये नॉर्दर्नर्स जो हैं, इनके हम कोई ज़्यादा प्रो नहीं रहे। और उसकी भी अगेन वही वजह है कि ये फ़ारसी स्पीकिंग है, पश्तो स्पीकिंग नहीं है। और फिर अंदर ताजिक, उज़्बेक, पश्तून लड़ाई भी है। तो क्योंकि हम पश्तून का साथ देते रहे हैं तो ताजिक उज़्बेक से फिर हम दुश्मन बन के रहते रहे हैं। तो उसमें बेसिकली इस वजह से हमने तालिबान को बेसिकली पहले हमने हिकमत यार को सपोर्ट किया, फिर तालिबान को सपोर्ट किया। जब पैसिफाई करके तालिबान ने गवर्नमेंट ले ली तो फिर हमने खुलेआम तालिबान को सपोर्ट किया। और हमारी सॉर्ट ऑफ एजेंडा तो मुझे समझ आ गया। अफगान लोग जो थे, सिर्फ वो क्या उस गेम ऑफ थ्रोन्स और सिविल वॉर और जो अहमद शाह मसूद ने काबुल में किया, आपने भी बात भी की, क्या उन वजहों के लिए वो पब्लिक सपोर्ट उससे चली गई थी? क्योंकि सोवियट्स में इतना बड़ा हाथ था उसका, मैंडेट भी उसका मतलब कुछ हद तक अच्छा था, तो क्यों अफगान सपोर्ट नहीं थी उसके पास? नहीं, अफगान नॉन फारसी स्पीकिंग सपोर्ट तो उसी के पास थी। अच्छा, अभी भी वो पॉपुलर फारसी स्पीकिंग में तो वही नॉन पश्तून्स में, फारसी स्पीकिंग में तो पॉपुलर अहमद शाह मसूद ही था बेसिकली। तालिबान बेसिकली दे हैड अ बिगर ये इन फाइटिंग की वजह से इनकी फौजें भी डिमोरलाइज हो चुकी हुई थी। अब अहमद शाह मसूद देखे ना, ही इज फाइटिंग सिंस 92 आ चुका है, 79 से लड़ा है वो। अब 13 साल गुजर चुके हैं जंग लड़ते उसकी फौजें भी डिप्लीट हो गया। ये एक नई फोर्स आई है जो कि हम ये नहीं कहते कि तालिबान वर पॉपुलर इन अफगानिस्तान,
They were not popular, they were good at fighting. But ये नहीं कह सकते कि they were the most popular force. या अहमद शाह अवाम मसूद उनके was साथ not. नहीं थी. हाँ. अवाम उसके साथ इस तरह नहीं थी, कुछ नहीं थे. मतलब डिवाइडेड था. नॉन पश्तून्स तो नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे. और इसके साथ जो नॉन पश्तून्स थे वो दे रैलीड हिम. और जैसे ही तालिबान टुक ओवर 96 में काबुल, तो ही वेंट बैक टू पंशीर. एंड एज सून एज ही वेंट बैक टू कश्मीर, पंशीर बिकेम द हब ऑफ एंटी तालिबान रेजिस्टेंस. कोई 10,000 अफगान फाइटर जो फॉर्मर फौज का बंदा था या फिर जो नॉर्दर्न लाइट्स के लोग थे, दे कम टू पंशीर एंड दे टेक हॉस्टेज इन पंशीर एंड दे स्टार्ट फाइटिंग फ्रॉम पंशीर एंड दे स्टार्ट टू रेजिस्ट फ्रॉम पंशीर. और अब एक मज़ेदार फैक्ट ये कि 1999 और 2000 में, अर्ली 2000 में, लेट 1999 में, तालिबान हैड कंसोलिडेटेड पावर इन 33 प्रोविंसेस आउट ऑफ 34 इन अफगानिस्तान. सिर्फ एक प्रोविंस जहाँ पे तालिबान नहीं जिसको कब्जा कर सके और जहाँ पे नहीं ताकत ला सके, वो पंशीर था. मेक सेंस. और वहाँ पे किसकी वजह से था? अहमद शाह मसूद की वजह से था. अच्छा, अब आते हैं थोड़ी सी, ये मुझे अनबिलीवेबल बातें लगी थी, मैं आपसे बस चेक कराना चाहूँ कि क्या ये सच है कि मसूद ने अमेरिका को वार्निंग दी थी उसामा बिन लादेन और अलकायदा के बारे में 1990s में? हाँ, उसने 90s में, लेट 90s में उसने रैली किया. ही वेंट टू यूरोप, ही वेंट टू यूएस. ही एक्चुअली आई थिंक यूएस नहीं गया था, यूरोप गया था. एंड ही एक्चुअली टोल्ड देम एंड ही प्रेडिक्टेड दिस कि ये होने वाला है. उसकी वजह ये है कि ही प्रेडिक्टेड द फैक्ट कि भाई ये एक तालिबान जो है ये एक इस्लामिस्ट मूवमेंट है, लेकिन ये अब इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने साथ अलकायदा को, जो कि इंटरनेशनल जहादिस्ट मूवमेंट है. और ये इंटरनेशनल जहादिस्ट मूवमेंट को जितना बड़ा सेफ हेवन अफगानिस्तान में मिल चुका है, और तालिबान जिस तरह इनको स्पेस दे रहे हैं और जिस तरह इनको ऑपरेट करने दे रहे हैं, ये बेसिकली आप पे बैकफायर करेगा और ये कोई बड़ा अटैक आप पे होगा और फिर ही आप इस पर बैकलैश करोगे. तो आप पहली बात तो मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं रेजिस्टेंस कर सकूं. दूसरी बात कि तालिबान की हुकूमत को ना मानो और उनको रिकग्नाइज ना करो और उनसे नेगोशिएट ना करो. ठीक है. ये भी सच है कि उन्होंने यूरोप में ये भी बताया था कि एक मेजर टेररिस्ट अटैक भी प्लान्ड है, मतलब ऑलमोस्ट प्रेडिक्टिंग के 9/11 होगा. हाँ, ये ही प्रेडिक्टेड दैट. और आप ये सोचो कि अमेरिकियों ने क्या किया कि अमेरिकियों ने उस पर बैन लगा दिया, उसकी एंट्री इनटू अमेरिका. हाँ, जिस बंदे ने 9/11 प्रेडिक्ट करके उनको दिया, अहमद शाह मसूद पे बैन लगा दिया टू एंटर इनटू. क्यों? इसी बात पे कि एक्चुअली फर्स्टली दे वांटेड टू प्लीज द तालिबान बिकॉज दे वांटेड टू ओपन नेगोशिएशंस विद तालिबान एज वेल. उस टाइम पे देयर वाज दिस वर्किंग एज वेल कि दे वांटेड द तालिबान टू एक्चुअली नॉट सपोर्ट अलकायदा एंड दे वांट टू नेगोशिएट विद देम एंड दे वांटेड देम टू किक आउट उसामा बिन लादेन. और वो उस पर नेगोशिएशन चल रही थी बहुत ज़्यादा. और उस पर ये बात भी हो रही थी कि अगर तुम लोग ये करते हो तो वी विल बी एबल टू हम तुम्हें एड दे सकते हैं या कोई तुम्हारी जो लेजिटिमेसी है उसको मनवा सकते हैं दुनिया में. तो वो एक बड़ा फैक्टर वो भी था कि वो नेगोशिएशन चल रही थी. दूसरा बड़ा फैक्टर ये था कि ही स्टार्टेड टू ही बिकेम द विसल ब्लोअर एज वेल. और अहमद शाह मसूद इस टाइम पे काबुल गिर गया है, अमेरिका से नेगोशिएट की कोशिश कर रहा है. ये रह कहाँ रहा था? पंशीर में. और उस टाइम में पंशीर में इसको नहीं मारना इम्पॉसिबल था. पंशीर में मैंने आपको कहा है कि एटलीस्ट 9 ह्यूज ऑफेंसेस उस वक्त की दुनिया की वर्ल्ड सुपर पावर ने किए. रशिया ने, और एयर के साथ, जहाज के साथ, हेलीकॉप्टर से उन्होंने बंदे गिराए, उन्होंने बम्बारमेंट की जहाज़ों से. वो पंशीर नहीं ले सके तो तालिबान कैसे लेते? बेसिकली तालिबान के लिए तो अगेन. और दूसरी बात ये कि पूरी नॉर्दर्न लाइंस जो थी, वो जितने एंटी तालिबान थे वो सारे दे गैदर्ड इनटू पंशीर. सो इट बिकेम ईदर इवन मोर स्ट्रॉन्गर फ्रंटियर अगेंस्ट द तालिबान. और बीच में इसने किया भी था ये भी, ही वाज एबल टू एक्चुअली फॉर्म दिस NRF नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसमें he was able to actually bring in दुस्तम, अदर नॉर्दर्न एलाइज पीपल, और उनको इसने बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक एंटी तालिबान फ्रंट खड़ा किया था. और जिसमें फिर इन्होंने कोशिश की कि वापस मज़ार शरीफ को लें या हेरात को लें, और इंसर्जेंसी इन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग की अपनी, और जिसमें बड़ा मसले मसाइल भी हुए तालिबान को. लेकिन फिर भी दे डिडंट इवेंचुअली दे वर नॉट एबल टू मटेरियलाइज जब तक अमेरिकी नहीं आए 9/11 के बाद. अच्छा, अगर वो इतने सेफ थे तो
अलकायदा ने उनका मर्डर इवेंचुअली कैसे किया? नहीं, सेफ नहीं थे। अगेन जंग तो लगी हुई थी ना, यानी मसले तो थे, जंग तो लगी हुई थी। एंड दे कुड नॉट, दे डिड नंबर ऑफ ऑफेंसेस, दे कुड नॉट सक्सीड। अब होता ये है कि अहमद शाह मसूद वाज वेरी ओपन टू मीडिया, ही वाज वेरी ओपन टू टॉकिंग टू प्रेस, एंड ही बिलीव्ड हिमसेल्फ के यू हैव टू गेट द मैसेज आउट। तुम्हें हमें हमेशा मैसेज, हमें इंटरव्यूज देने चाहिए, बात करनी चाहिए, मैसेज बाहर पहुंचाना चाहिए। एंड दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड टू एक्चुअली आस्क फॉर सपोर्ट अराउंड द वर्ल्ड। तो वो बेसिकली इस चीज़ में बहुत बिलीव करता था। ही हैड इंटेलिजेंस। वन ऑफ हिज वेरी क्लोज कमांडर एक्चुअली आस्क्ड हिम टू स्टॉप गिविंग इंटरव्यूज बिकॉज आपकी असैसिनेशन प्लान हो रही है। होता ये है कि एक कैमरा टीम आती है टू इंटरव्यू अहमद शाह मसूद। They had the huge cameras, reporters और सब कुछ, and they actually walk track in Panjshir Valley for hundreds of kilometers, और वो वहाँ पहुँचते हैं ट्रैक करके with their cameras and everything to do an interview. Ahmad Shah Massoud actually वो I think he was praying at that point of time, or he just got off the prayer and he comes and sits. Boom, the camera blasts. The bomb was fitted inside the camera. और वो कैमरे के जरिए उसको लाके, और वो अलकायदा ने उसको क्लेम किया, उसामा बिन लादेन ने उसको पर्सनली ऑर्डर किया इस अटैक को, उसने मॉनिटर किया कि ये अटैक सक्सेसफुल हो। और इसी से मुझे याद है कि जब हम आई वाज रिपोर्टिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम अ वीडियो जर्नलिस्ट, सो आई ऑलवेज हैव अ कैमरा विद मी, तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई फेस एंटरिंग एनीवेयर इन अफगानिस्तान वाज द कैमरा। वो कैमरा ऐसे खोलते थे, पहले मशीन से निकालते थे, फिर वो खोलते थे, फिर उसके लेंस खोलते थे, फिर बैटरियां निकालते थे, फिर ऊपर से बटन डालते थे, फिर अंदर कोई चीज डालते थे। सही है, मतलब हर चीज चेक करते थे। एक्सपीरियंसेस गुजर चुके हैं ना, उनको पता है। तो मैं बड़ा से ना स्टार्टिंग में तो मैं बड़ा होता था कि यार क्या कैमरा ही है ये, लो यार जस्ट चला कर दिखा देता हूँ। लेकिन बाद में मुझे समझ आई कि जब मैंने अंडरस्टूड हिस्ट्री, देयर इज अ हिस्ट्री कि कैमरा इस्तेमाल हो चुका है, तो दिस इज द रीजन दैट दे आर अफ्रेड ऑफ कैमरास। अच्छा, ये क्या कोई कोइंसिडेंस था कि मसूद की जो डेथ थी वो 9/11 के बिल्कुल आसपास, आई थिंक 2 दिन पहले मरे 9/11 से, कुछ ऐसे कुछ? आई थिंक नहीं, कोइंसिडेंस नहीं था। आई थिंक बोथ ऑफ देम वर प्लान्ड इन अ वे कि इस तरह किए जाएं कि पहले मसूद को मारा जाए, फिर 9/11 किया जाए। उसकी वजह ये है कि बेवकूफ़ तो उसामा बिन लादेन भी नहीं था, और बेवकूफ़ तालिबान भी नहीं थे, जो भी अलकायदा की लीडरशिप थी वो भी नहीं थे। दे न्यू दैट that America would respond, and they would respond very brutally in Afghanistan. So the best case scenario would be to kill the biggest opponent. जो अमेरिका का सबसे बड़ा लाई होगा, कौन होगा इक्वेशन में? अहमद शाह मसूद होगा, और वो लेजिटिमेट भी है। अवाम भी साथ आ सकती है। He is also legitimate. So if we kill him, even and after we do 9/11, even if America invades, they won't have a legitimate leader. और वही हुआ, legitimate leader उनके पास नहीं था। हामिद करज़ई भी legitimate नहीं था। अगर मसूद होता तो शायद वो बहुत legitimate होता। He would have been someone who was legitimate. Again, ये hypothetical question है, इसका कोई सही जवाब तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि अगर वो मसूद को ना मार पाते तो वो वेट करते पहले उसको मारने के लिए? क्योंकि ये आपकी बात सही है कि अगर सितंबर 9 को नहीं फौत हो, तो सितंबर 11 के बाद जब अमेरिका ने आना है, तो उस टाइम तक तो मसूद विल, जिस सेकंड 9/11 होता है, एंड इफ मसूद इज अलाइव, तो उसको एक मतलब वेव ऑफ सपोर्ट आती है। हुआ भी बाद में ही ना, बाद में NRF नहीं, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की जो फोर्सेस थी, अमेरिका ने उन्हीं को बैक किया। 1.5 माह में, जब 1.5 माह में उन्होंने काबुल लिया, उसके बाद 1.5-2 माह लगे उन्होंने काबुल लेने में, तो उन्हीं को बैक किया। ये मसूद की फोर्सेज थी वैसे, जिनका कमांडर NRF का कमांडर मसूद था, मसूद को मार दिया, लेकिन उसी की फोर्सेज ने बेसिकली अमेरिकन को सपोर्ट किया। वही एक ऑर्गेनाइज फोर्स थी जिन्होंने आके बेसिकली लिया। अच्छा, आपका सवाल ये था कि अगर ये ना होता तो वो डिले हो जाता। अब इसका अगेन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द पॉडकास्ट अगेन बाय उसका बेटा जो अहमद मसूद है, उसका ही बिलीव्स के इट वाज इंटेलेक्ट। ही बिलीव्स के अगर ये ना होता, if my father wouldn't have died, there may be 9/11 wouldn't have happened because they would have, the risk is too high. नहीं, I can मतलब शायद वो obviously प्रूव करना इम्पॉसिबल है अब, लेकिन सेंस तो इस बात की बन रही है। अच्छा चलें, मैं आपका बहुत ज़्यादा और टाइम नहीं लूँगा। एक आखिरी सवाल इसी पूरी स्टोरी में, आज
की तारीख में, आप तो अफगानिस्तान में रिसेंटली रिपोर्ट भी करते रहे हैं, अंडर तालिबान रूल क्या अहमद शाह मसूद उनके लिए एक हीरो है? अफगानी अवाम के लिए मैं बस बात कर रहा हूँ, पंशीर में या इवन काबुल में, क्या वो एक हीरो हैं, क्या वो एक विलन है? क्योंकि यूएस लिटरेचर में वो एक हीरो हैं, कुछ हद तक पाकिस्तानी लिटरेचर में भी वो एक विलन दिखाए जाते हैं, अफगान लिटरेचर में वो क्या हैं? अच्छा, अहमद शाह मसूद देखें, when I first went to Afghanistan 2019 में पहली दफ़ा अफगानिस्तान गया था. When I landed in Afghanistan, you land at the airport, you see his picture, a huge picture of Ahmad Shah Massoud. अच्छा. At that point 2019 में, तब तो दूसरी गवर्नमेंट थी, तालिबान ने भी टेक ओवर नहीं किया था. The biggest traffic square in Kabul was called Masood Square. और जिस दिन मैं गया था वहाँ पे, उस दिन उसका मसूद डे मनाया जा रहा था, a day after. तो I saw like you know this whole celebrations, लोग गाड़ियों पे पंशीरी निकलते थे. ताजिक्स basically they would properly celebrate मसूद डे, जिसमें वो they would actually get out on cars, गाड़ियों के पीछे स्पीकर लगे हुए हैं. वो मसूद के अमीर साहब कहा करते थे इसको, बाद में इसको अमीर साहब शहीद कहते थे आफ्टर हिज डेथ. तो अमीर साहब शहीद के there are songs on the cars, उसके बैनर्स लगे हुए हैं हर तरफ, and it was celebrated as a day कि मसूद को सेलिब्रेट किया जाता था. आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल वॉज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू पंशीर. कोई आई थिंक नवंबर 2021 में मैं पंशीर गया था पहली दफ़ा, जब तालिबान की हुकूमत आ चुकी थी. तो आई रिमेंबर आई एंटर्ड काबुल ऐसे, तो पंशीर वही अगेन हाई माउंटेन्स, वैली, छोटी सी रोड जा रही है, साथ पंशीर दरिया जा रहा है, और उसका गेट है पंशीर वैली का, और इधर रशियन टैंक्स खड़े हुए हैं टूटे हुए, आग लगी हुई है उनको. और दैट वाज अ सोवेनियर अहमद शाह मसूद का, कि ये मैंने रशियंस के साथ किया था. दैट वाज काइंड ऑफ अ रिमाइंडर टू एवरीवन हु वुड एंटर पंशीर के बी केयरफुल, हमने रशियंस के साथ ऐसे किया था. तो ये, एंड देन ऑन द रोड साइड देयर बैनर्स फॉर किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स, और उन सब बैनर्स पे अहमद शाह मसूद की तस्वीर थी, और वो सारे बैनर्स फाड़े गए थे तालिबान ने, क्योंकि बिकॉज दे एंटर्ड काबुल पंशीर, तो दे एक्चुअली उन्होंने सब फाड़ दिया, सब तोड़ दिया. उसके अहमद शाह मसूद की तस्वीरें हटा दी, हर चीज़ कर दी. जो कुछ जगहों पे उसकी पेंटिंग्स बनी हुई थी या उसकी कोई स्कल्पचर्स बने हुए थे, उन पे इंक फेंक दी, तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया. लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये थी कि आई वेंट टू हिज ग्रेव, अहमद शाह मसूद ग्रेव. अहमद शाह मसूद की ग्रेव पे जब मैं एंटर हुआ, मैं दरवाज़ा खोला और मैंने सामने देखा तो 5 तालिब फुट सोल्जर्स, दे हैड देयर गन्स ऑन देयर बैक, वो वहाँ पे फातिहा पढ़ रहे थे खड़े हुए. अब आफ्टरवर्ड्स आई वेंट एंड आई मेट द कमांडर ऑफ तालिब कमांडर ऑफ पंशीर वैली, जो उसके वहाँ पे था, गवर्नर की जगह वो था, वाज इन कमांड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई मेट हिम, एंड व्हेन आई मेट हिम एंड वी आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन, वो भी पंशीरी था, उसने पंशीरी टोपी पहनी हुई थी, और वो जो मसूद भी टोपी पहनता है, वो पंशीरी बड़ी फेमस टोपी है, कैप है. तो जब मैंने उससे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ अहमद शाह मसूद, तो even though he was a Talib, he said कि ये हमारा हीरो है अहमद शाह मसूद. क्यों? क्योंकि ये खारजियों के खिलाफ लड़ा था. खारजी कहते हैं फॉरेनर को. He fought against the खारजीज. हमारे अंदर जो disputes हैं वो हैं, लेकिन he was a great commander and he actually kicked out the Soviets. And if he was alive when the Americans occupied, he would have fought against the Americans as well. He wouldn't have accepted American soldiers or American fleet on the ground in Afghanistan, or Americans running the government. So that was his, Afghan national tha basically. Afghan national tha. So that's the reason he's a lot of people, he's the hero of Afghanistan. Perfect. I think that's a great place to leave it. बहुत बहुत शुक्रिया अगेन. इंशाल्लाह आपको 5वीं दफ़ा बुलाए जाएंगे. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.